ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ಆ ಪರಮ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ ಆತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೋರೋಣ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವಾಗಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತುಗಳದ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 25ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We'll read Psalm 25 as responsive reading. भजन संहिता 25वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में हम पढ़ेंगे. भजन संहिता 25वां अध्याय 1 से लेकर हम 12 तक पढ़ेंगे. We'll read from verse 1 to 12 as responsive reading in Psalm 25. हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ. है मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है. मुझे लज्जित होने ना दे. मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए. वरना जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो आक्रमण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे. हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला. अपना पथ मुझे बता दे. मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है. मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ. हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं. हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर. अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर. यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपने मार्ग दिखलाएगा. वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा. हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा. जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है. है यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर. 12 वचन साथ पढ़ेंगे. वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा. ಆಮೇನ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಣುವಿಕೆ ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಣದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಸ್ತಲೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ತನಕ, ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ರೋಗಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನೀನು ನಡೆಸು. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನೀಡುತ್ತಾ ನೀನು ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಕರ್ತನೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದೆ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀನು ಒಂದಾನೊಂದಿನ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ದೇವರೇ, ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಂಧಕಾರದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೀನೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳುವಾಗಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತದ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಧೈರ್ಯ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಡೆಸು. ದೇವರೇ, ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು, ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಕೈಲೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರು, ಮೇಡಮ್, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು, ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು. ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಆತನು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ರಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು.
ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಾಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನ. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನ ತನಕ. In the Old Testament, the reading is taken from Book of Judges, chapter 3, verses 7 to 11. Judges, chapter 3, 7 to 11. न्यायों का किताब 3रा अध्याय 7 से 11 पुराना नियम का पाठ होगा. ನ್ಯಾಯೋಗ का किताब 3ರಾ ಅಧ್ಯಾಯ 7 से 11. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ರಿಂದ 32ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 verses 30 to 32 in the New Testament reading. नए नियम का भाग एफिसियों को लेकर पत्र उसका 4था अध्याय 30 से लेकर 32 वचन तक. पहले हम पुराने नियम का पाठ पढ़ेंगे. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದೋಣ. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಿಂದ 11. न्यायों का किताब 3रा अध्याय 7 से 11. इस प्रकार इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवता और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए. तब यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का और उसने उनको अरमनहरम के राजा कुशन रिशातेम के अधीन कर दिया. सो इज़राइल 8 वर्ष तक कुशन रिशातीम के अधीन रहे. तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इज़राइलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनील नामक एक कंजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया. उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वो इज़राइलियों का न्यायी बन गए और लड़ने को निकला. और यहोवा ने अराम के राजा कुशत्रिशातेम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशत्रिशातेम पर जयवंत हुआ. तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में खंजी ओतनील मर गए. परमेश्वर पढ़े हुए वचनों को आशीषित करें. वो सोड़ मड़ के भाग है नए नियम का भाग इन द न्यू टेस्टमेंट. एफिशियंस 4:30 to 32. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿನದ ಆತ್ಮೀಯ ಮನ್ನಗೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು, ಅದರ ಗುಡಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗ, ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೀವು
ಒಳ್ಳೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತೋರಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಿಗರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಆ ಕಾರಿಗರಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಿಗರ ಇದ್ದನಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್. ಅವನಿಗೆ ಹಳೆ ಮುರಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು, ಡೋರ್, ದರ್ವಾಜೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅವನು ಆ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು, ಆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ. क्या आपने कभी एक कुशल कारीगर को देखा है? हाँ, आपने ज़रूर देखा होगा. अगर उन कारीगरों को या उस कारीगर को उसके व्यवसाय के अनुसार यदि आप कुछ बनाने को कहते हैं तो वो सुंदर रीति से अपना कला कौशल्य के ज़रिए बनाता है. मेरा एक मित्र था जो मिस्त्री कारीगर, कारपेंटर. उसको मैं पुराने दरवाजे जो लगभग टूटा हुआ कंडीशन में था, उन दरवाज़ों को सुंदर रीति से आकार देते हुए, नए जैसे बनाते हुए मैंने देखा है. और एक मित्र उसी ट्रेड में, जो पुराने लकड़ी जिसे फेंक दिया गया था, उस लकड़ी को लेकर बहुत अच्छा एक टीपॉय टेबल, छोटा टेबल सुंदर रीति से बनाया. जिस लकड़ी का मूल्य नहीं था या जिस लकड़ी को फेंका गया था, जिस दरवाजे को हटाया गया था, उसे सुंदर आकार देने के लिए ये कौशल्य युक्त कारीगर सुंदर रीति से आकृति देता है, बनाता है. और उसी तरह देखिए, जो कांच के काम करने वाले लोग, कांच को आकार देने के लिए उनको फूंकना पड़ता है. उस भट्टी में जब कांच तैयार होते रहता है तो वो फूंक कर उसकी आकार तैयार करते हैं, सुंदर रीति से आकार तैयार करते हैं. अब आपने देखा होगा कांच के बॉटल्स, अलग अलग तरह के बॉटल्स, फ्लावर वाजेस और बहुत सारे कांच के आइटम्स सुंदर रीति से उसे डिज़ाइन किया जाता है. ये कारीगर का या ये उस कौशल्यपूर्ण व्यक्ति का, उसका पूरा प्रयास होता है. ऐसे ही परमेश्वर एक बेकार, एक जो पुराना पापी या अधर्मी या नकारा हुआ व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मूल्य नहीं है, वैसे व्यक्ति को या वैसे जन को परमेश्वर नए सिरे से उसे रच सकता है, उसे रूप दे सकता है और उसे एक अच्छा काम के लिए उपयोग कर सकता है. मनुष्य को केवल परमेश्वर ही रूप दे सकता है, बना सकता है. और जब परमेश्वर बनाता है या जब परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति के अंदर जो बिना नकारा या इस तरह कहिए कि एक सड़ा हुआ पापी, ऐसा मैं शब्द उपयोग करूंगा, वैसे व्यक्ति को भी परमेश्वर की आत्मा जब उस पर उतर आती है या परमेश्वर की आत्मा उसमें
रुचि लेता है, तब उस व्यक्ति को परमेश्वर पूर्ण रीति से बदलता है, रूप देता है, एक अमूल्य बनाता है, उसे मूल्यवान बनाता है, और उस व्यक्ति को परमेश्वर उपयोग करता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, परमेश्वर ने किस तरह उनके जीवन में कार्य किया, किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन के जरिए, कभी कोई सोच भी नहीं सकता, उनके जीवन के जरिए लोगों को छुआ है। एक व्यक्ति था जिसने मेरे बदलने के या मुझे परमेश्वर के पास चलाने का एक कारण था। वो व्यक्ति उसके गवाही में इस तरह का कहा था कि वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, केवल पहली क्लास जाकर स्कूल छोड़ दिया, और क्योंकि वो बेकार बस्ती में रहता था जहाँ पर हमेशा मार पीट पीना वगैरह, ऐसे में वो क्या सीखता, वो भी चोरी करना सीखा, वो भी लोगों के साथ गुंडागर्दी करना सीखा, और जैसे ही वो युवावस्था में आया तो परमेश्वर ने उसे एक बार पकड़ लिया। गलती से वो कोई प्रेयर मीटिंग में गया, वहाँ पर परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया और उसका जीवन को बदलते गया, और आने वाले सालों में, दिनों में, वो व्यक्ति जिसे पढ़ने लिखने नहीं आता था, वो आज अच्छा हिंदी पढ़ लेता है, अच्छा हिंदी बोलता है, और इतने नहीं, परमेश्वर के कामों में परमेश्वर उससे बहुत ऐसे उपयोग कर रहा है, और उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने छुआ है, उनके जीवनों को बदला है। उसमें से मैं भी एक हूँ। एक अनपढ़ व्यक्ति नकारा हुआ, उसे परमेश्वर ने उसके लोगों को तैयार करने के लिए उपयोग किया, और आज वो भी एक अच्छा मिनिस्ट्री बॉम्बे में कर रहा है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है या काम करने के लिए तैयार होता है, तो वो उन लोगों के पास या उस व्यक्ति को पकड़ता है जो संपूर्ण रीति से खोखला हो गया है, या इस तरह कहिए कि अंधकार के वातावरण में अगर कोई परमेश्वर को दिख गया तो परमेश्वर उसे उपयोग करता है, उसे बनाता है, उपयोग करता है। ऐसे ही इस न्यायों की किताब में हम देखते हैं कि वहाँ पर अंधकार के समय, या इस तरह कहे कि यहूदी लोग, इज़राइली लोगों ने परम प्रधान परमेश्वर की आराधना छोड़कर बाल नामक देवताओं को, जो मनुष्य के रचना या काल्पनिक देवी देवताएं, उनकी आराधना करने लगे, और अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करने लगे, जो परमेश्वर कहा था कि नहीं करना। मेल मिलाप नहीं, उनके साथ शादी ब्याह रचना। और ये लोग जो परमेश्वर के कहलाते थे, ये अपने आप को पूरी तरह उस खराब माहौल में मिला लिए थे। इस कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर उनको दूसरे राजा के हाथों में छोड़ दिया, उनको दंड दिया, शिक्षा दी। लेकिन परमेश्वर, जैसा आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि वो न्यायी है, दयालु है, करुणामय है। वो अपने बच्चों की आंखों की आंसू का कदर करता है। उसने देखा कि इजरायली लोग पीड़ा में हैं, रो रहे हैं, उनकी आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, गिना, और परमेश्वर ने उनको उस राजा के हाथों से छुड़वाना चाहता था।
और जब छुड़वाना चाहता था तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो न्याय का पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 से 11 हमने पढ़ा, उसमें एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। हालांकि उस व्यक्ति के बारे में बहुत लंबा चौड़ा बात कहा नहीं गया, उसके बारे में सिर्फ इतना कहा गया कि वो किसका बेटा था और वो एक कैसे उसने या परमेश्वर ने कैसे उसके जरिए काम किया। प्रियो, केवल संक्षेपित में उसे उसके विवरण को दिया गया और उसे उसके जरिए 40 साल तक परमेश्वर के सुंदर वातावरण उस इज़राइल देश में बना रहा। यहाँ पर वो व्यक्ति का नाम मैं कहूँगा, उस व्यक्ति का नाम था ओतनील। ओतनील एक इस तरह कह सकते हैं कि वो परमेश्वर में शायद ही नहीं होगा, या वो व्यक्ति शायद कोई काम का नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी या परमेश्वर उतरा तो उस ओतनील को परमेश्वर ने बनाया, उसे रूप दिया और उसे तैयार किया ताकि वो परमेश्वर के कार्य को कर पाए। देखिए, आज भी हम सारे लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम जो अब भी परमेश्वर के लोग कहलाने के बावजूद भी हम परमेश्वर के नहीं हैं। ओतनील भी ऐसे ही था। ओतनील कालेब जो जोशुआ के बाद जो लोगों को चलाया, कालेब के छोटा भाई या छोटा भाई का बेटा हम कह सकते हैं ओतनील। इस परिवार को या कालेब के जरिए उसके परिवारजनों को मालूम था परमेश्वर के प्रधानत्व के बारे में, परमेश्वर के महानता के बारे में, या परमेश्वर का परिचय था। फिर भी वो शायद परमेश्वर में उतना रुचि नहीं लेता होगा जितना लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे हम में से भी लोग हैं, हम परमेश्वर की रुचि को नहीं जानते हैं, नहीं लेते हैं। परमेश्वर को हम एक अलग रीति से हम देखते हैं, उसे हमारे जीवन में हम उतरने नहीं देते हैं। लेकिन प्रियो, समय अब बदल चुका है, समय आ चुका है कि परमेश्वर हर एक लोग, उसके नाम के हर एक व्यक्ति को वो बदलना चाहता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अंत बहुत निकट है। कब है नहीं पता, हो सकता है कि हमारे जीवन काल में होगा या हमारे मृत्यु के पश्चात होगा, लेकिन जब भी है नज़दीक है। आज दुनिया को अगर हम देखें तो दुनिया के व्यवस्था आज ठीक नहीं है। आज जो नहीं होना है वो चीज़ हो रहा है। आज हमारा जीवन समाप्त होने के कगार पर है। आज हम कभी भी कैसे भी हमारा दुनिया को सिमटाने के प्रयत्न कर रहे हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े शक्तियां युद्ध का माहौल तैयार कर रहे हैं, और ऐसा युद्ध जो केवल कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरा दुनिया को तबाह करेगी, विनाशक युद्ध। ऐसा माहौल में हम जी रहे हैं। ऐसे इसमें जरूरी है कि जब तक हम जीवित है, श्वास ले रहे हैं, हम अपने आप को पूर्ण रीति से इस तरह तैयार कर ले कि अगर हम आज भी परमेश्वर के योजना अनुसार या परमेश्वर के जो सुंदर सृष्टि है ये अगर समाप्ति होती है, तो हम उस सुंदर सृष्टि में, उस परम प्रधान परमेश्वर के सन्निधान में
हम रह पाएँ, रह सके, इसीलिए हमें तैयार होना ज़रूरी है। और तैयार कैसे होंगे हम? जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा उतर के काम नहीं करेगा, हम तैयार नहीं हो पाएंगे। हम अपने प्रयत्न से नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि पौलुस बहुत सुंदर रीति से कहता है कि हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य भी परमेश्वर के सामने एक कूड़ा कचरा के समान है। हम उसके पवित्रता को या उसके लेवल को कभी मैच नहीं कर पाएंगे। ये उसकी अनुग्रह ही है, उसकी कृपा ही है कि वो हमें उठाता है, हमें उसके साथ जुड़ाता है। इसीलिए तो वो कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। और इतने नहीं, वो एक कदम आगे जाकर कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। प्रियो, ये परमेश्वर या इस परमेश्वर की आत्मा को यदि हम में काम करना है, यदि हमारे जीवन में उनकी चलन होना है, तो देखिए, पहला चीज ओतनील के जीवन से हम देखते हैं। क्यों वहां पर एक व्यक्ति था, ओतनील वहां पर अवेलेबल था, वहां पर वो सिद्ध था या तैयार था, परमेश्वर ने उसे पकड़ा। हम भी परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की आत्मा के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। वी हैव टू बी अवेलेबल। पहला, हम अपने आप को तैयार रखना है। परमेश्वर की आत्मा, जैसे कि हम सारे लोगों को पता है कि हर एक विश्वासी के अंदर निवास करता है। हर एक जो प्रभु को स्वीकार किया है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। इस परमेश्वर की आत्मा को हम अपना संपूर्ण उसे देना है। पहला, हम सिद्ध होना है, तैयार होना है। और दूसरा, हमारा जीवन का नियंत्रण उसके हाथों में देना है। देखिए, हम ये नहीं जानते कि ओतनील कैसा योद्धा था, उसने कैसा लड़ाई की, नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि उसने वो परमेश्वर के आत्मा के अधीन में या नियंत्रण में था। परमेश्वर की आत्मा उसे एक बहुत बड़ा योद्धा बनाया और उसके जरिए से परमेश्वर ने पूरा इजरायलियों को दुश्मन देश से छुड़ाया। हो सकता है कि परमेश्वर की आत्मा को जब हम अपना जीवन उसके नियंत्रण में देंगे, कैसा देना है? प्रार्थना करते हुए उसे कहना है कि प्रभु, मेरा जीवन तेरे नियंत्रण में ले ले, तेरे अधिकार में ले ले, और दिन प्रतिदिन वो हमें चलाएगा। यदि वो हमें चलाएगा तो निश्चित जानिए कि हम अपने हर एक हमारे दुश्मनों से हम जीत पाएंगे। चाहे वो दुश्मन सामने प्रत्यक्ष क्यों ना हो, या चाहे वो दुश्मन हमारा हर एक किस्म का परेशानियां के रूप में क्यों ना आए, हम सभी को मात दे सकते हैं यदि परमेश्वर को अपना नियंत्रण देंगे तो। तीसरा, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर को वो अपना नियंत्रण देने के बाद ओतनील, परमेश्वर ने उसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं रखा, उसे एक नायक बनाया, उसे एक लीडर बनाया। प्रभु का काम है। प्रभु हमें, जब हम अपने आप को उसे समर्पण करेंगे या उसके नियंत्रण के अनुसार हमारे जीवनों को व्यतीत करेंगे, तो निश्चित वो हमें एक नायक बनाता है, एक लीडर बनाता है, और लीडर बनाकर हमें वो काम देता है, उपयोग करता है। हो सकता है कि हमें ऐसा काम दे, जैसे
संडे स्कूल चलाना, जैसे अलग अलग चर्च के डिपार्टमेंट को चलाना, या कमेटी में रहना, या कॉन्फ्रेंस मेंबर बन के रहना, या अलग अलग गुणों से भर देता है ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहित करना, प्रार्थना में अगुवाई करना। ये सारे गुणों को, ये सारे चीज़ों को करने के लिए वो हमें सशक्त करता है, और ये हमें करना है। हम ये नहीं कहना चाहिए, किसी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए। यदि मुझे अगर कोई स्थान मिला है तो उस स्थान के लिए मैं घमंड नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को नम्र करते हुए उस स्थान को सही उपयोग करना, उस स्थान का सही उपयोग करना चाहिए, और जो परमेश्वर मुझसे अपेक्षा करता है उस कार्य को मैं करना चाहिए। ये एक परमेश्वर के चाहत अनुसार लीडर की विशेषता है कि वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखकर परमेश्वर के इच्छा अनुसार नम्रता से कार्य करता है। चौथा हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथों में अगर हम समर्पित हो गए, जब परमेश्वर की आत्मा हम पर उतरा, या हमारे अंदर निवास किया, या हमें चलाने लगा, तो वो हमें छुटकारा देता है, बंधनों से छुटकारा देता है, हमें दुश्मनों से, शैतान अलग अलग तरह के कार्य करते हुए अलग अलग रीति से हमारे सम्मुख में आता है, सामने आता है, हमारे आजू बाजू में आता है। उस शैतान को हराने के लिए हमें परमेश्वर सशक्त करते हुए हमें छुटकारा दिलाता है, या हमें आगे बढ़ाता है, पापों के हर बंधनों से छुटकारा देता है, और हम दूसरों को भी पापों से छुड़ा सकते हैं। ऐसे भी सामर्थ्य हमें वो बढ़ता है। और इसके अलावा यदि परमेश्वर हमारे भीतर प्रवेश करता है, यदि परमेश्वर के नियंत्रण में अगर हम रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे चारों तरफ शांति का वातावरण निर्माण करता है। हमारे इस लोक से प्रस्थान होने तक, कब्र में जाने तक परमेश्वर शांति का वातावरण निर्माण करता है, जीत का वातावरण निर्माण करता है। यदि समस्याएं उत्पन्न हुई तो भी हमें वो जयवंत बनाता है, हमें वो जय दिलाते हुए आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए प्रियो, उसके अपने लोग जब हम कहलाते हैं, तो इस परमेश्वर को, जो उतनील को, बस उसके बारे में चंद शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा उस पे उतरी, और परमेश्वर ने उसके जरिए से इजरायलियों को छुटकारा दिलाया, और परमेश्वर ने उस राज्य को 40 साल तक, जब तक वो जिंदा था, उतनील जिंदा था, तब तक शांति प्रदान किया, तब तक परमेश्वर के अनुग्रह उस देश पर, उन लोगों पर रही। ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर करते रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने दे। आज के वातावरण में, आज की स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा पल क्या होगा, हमें नहीं पता कि कब हमारा अंत होगा, लेकिन जब हम जीवित है, श्वास ले रहे हैं ज़िंदगी का, तो ये सही वक्त है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, उसके अधीन में अपने आप को रखें, उसके नियंत्रण में अपने आप को दें। तब वो हमें एक नायक बनाएगा, तब वो हमें छुटकारा हमें दिलाएगा, हमारे ज़रिए से दूसरों को दिलाएगा, तब वो हमें हर चीज़ से शांति दिलाएगा, हर परेशानियों से शांति दिलाएगा, हर बीमारियों से हमें दूर रखेगा। इस परमेश्वर को आज ही हम एक नए सिरे से इनसे वाचा बांधकर हमारे जीवन को जिएंगे, तब हम आशीषों के
पात्र रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए और ओतनील के जीवन के ज़रिए आपने हमें चंद बातों को समझाया। पिता, हम इन बातों का अनुसरण करते हुए अपने आप को आपके हवाले करते हैं। स्वीकारें, हमें मुद्रित करें और आपकी अगुवाई में हमें चलाएं। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಂದಿರದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಆದರೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವರು ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರಿತಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಟೈತ್, ಡೊನೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಟ್ರೆಷರರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ರಿಸಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟುಡೇ 8th ನವಂಬರ್, ಪ್ರೇಮಾ ಸುಧಾ ಜಿ ಸೋನ್ಸ್. 9th ನವಂಬರ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಜಾನ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. 10th ನವಂಬರ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ. 10th ನವಂಬರ್, ಶರ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಉನಿತನ್. 10th ನವಂಬರ್, ಶಾಲ್ವಿನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 10th ನವಂಬರ್, ಅಸ್ಮಿತಾ ಬಬ್ಲು ಮುದಲಿಯಾರ್. 13th ನವಂಬರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೆನಿ ಎಬ್ನಿಸ್. 14th ನವಂಬರ್, ನಥಾನಿಯಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಕನ್ನನ್. 14th ನವಂಬರ್, ಜಾನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮೆಹತರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟುಡೇ 8th ನವಂಬರ್, ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆನೆತ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಸಾಲಿನ್ಸ್. 12th ನವಂಬರ್, ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿರಿಲ್ ಲೂಕಸ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. आमीन. प्रार्थना मानना। आइए हम प्रार्थना करें। इन सारे लोगों को
परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। उसके अलावा कुछ प्रार्थना निवेदन है, उनको भी हम परमेश्वर के सन्मुख में रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। इस समय इन प्रिय जनों को जो अपनी जन्मदिन सप्ताह मना रहे हैं, उनको आपके पवित्र चरणों में अर्पण करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रेमा सुधा आंटी के लिए, प्रीतम के लिए, अलेक्जेंडर चिन्नय अंकल के लिए, शर्ली के लिए, शालविन के लिए, अस्मिता के लिए, प्रियंका के लिए, नतानिल देवराज के लिए, जॉन शांतापा के लिए, पिता इन सारे लोगों को आशीषित करे। जैसे अपने जीवन के नए वर्ष में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं जैसे आपने अब तक इन्हें संभाला संवारा, इनकी अगुवाई की, वैसे होने दे प्रभु कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में भी, आने वाले इस नए वर्ष में और अधिक परमेश्वर के आशीषों के पात्र बनकर अपने जीवन को सुंदर रीति से बिता सके। ऐसे अनुग्रह कर और इनके जीवन के क्षेत्र में आपकी उपस्थिति, आपकी प्रसन्नता रखते हुए इन्हें चलाएं, इनकी अगुवाई करें, इनके पर आपकी सुरक्षा कवच रखें, ताकि अंधकार की कोई शक्ति, शैतानी कोई ताकत, न बुराई न बीमारी इनके पर हावी हो, बल्कि हमेशा ये प्रियजन परमेश्वर के बल में, परमेश्वर के सामर्थ्य में जी सके। ऐसे आशीषित करें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें और उनके पढ़ाई में आपकी सहायता उन्हें प्रदान करें। परमेश्वर की आत्मा आप इन सभी को आपकी अनुग्रह में चलाएं। उसी तरह प्रार्थना करते हैं इन दो परिवारों के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह इस सप्ताह मना रहे हैं, मिसेस एंड मिस्टर केनेथ रॉबिन्सन सालिंस, मिसेस एंड मिस्टर सिरिल लूकस। पिता इन परिवारों को आशीषित करें। इनको आपने सालों पहले परिवार के रूप में जोड़ा और इनके ज़रिए आपने एक परिवार का स्थापना करते हुए पिता इनकी अगुवाई की और अब तक इन्हें संभाला और हर आशीषों को इनके जीवनों में उतारा। इन सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि इन परिवारों को आपकी सुरक्षा कवच जोड़े, ताकि ये प्रियजन हमेशा अपने परिवार में पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हुए परमेश्वर के बंधन में बंधे हुए रह सके। और पिता इनके जीवनों में और अधिक आसमानी आशीषों को उतार, ताकि ये प्रियजन हमेशा संतुष्ट रह सके, इनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करें। पिता ये परिवार आपके लिए, आपके राज्य के लिए उपयोग हो सके, एक गवाह बनकर रह सके, ऐसे अनुग्रह कर। उसी तरह प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, जो कमज़ोर है, जिनको इस समय हम सारे लोग मिलकर आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं सुतार आंटी के लिए, कुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए और मार्टिन अर्थर के लिए, जोएल बेन के लिए। पिता इन सारे लोगों को आशीषित करें, इन सारे लोगों को बल दें, इन सारे लोगों को आपके अनुग्रह में एक सुंदर आरोग्य पा सके, ऐसे अनुग्रह करें। और उसी तरह जोएल के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं, उसके हृदय की चेत को भर दे। पिता फिर एक बार इन सारे लोगों को भी और उन लोगों को भी जो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं, जो कमज़ोर है, बीमार है, जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, उन सभी लोगों को पिता हम एक एक कर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी मुख्य उजाला उनके जीवन में हमेशा प्रदान करें। फिर एक बार पिता इन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए और विनती करते हैं, जो विधान आपके बच्चों ने इस समय आराधना के पश्चात जमा करेंगे, उन सारे लोगों के ऊपर, आपके सभी बच्चों के ऊपर आपकी आत्मा की आशीषों की बरसात होने दे। उनके जीवन में हर समय आपके कार्य होने दे। पिता जितने ने दिए हैं, जैसे आपकी वादा है, उन्हें दुगना तिगना आप आशीषित करें। पिता जो दान आपके राज्य, आपके समक्षता में रखे हैं, उस दान को आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें। फिर एक बार पिता हम सारे लोग कलीसिया के सभी लोगों को अर्पण करते हुए
ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.